Very good morning, everyone. Welcome back in differentiation 11th class, 11th lecture. Uh, in the last lecture, we started with derivative of implicit function, right? And I think I had given you few questions for homework also for implicit function. So let me know in exercise 1.3, the question which I had given you for homework. Is there any doubt in those questions? It was 1.3, question number 3. Yeah, these were the 10 questions. Please raise your doubt fast. Question number 3rd. Okay. And question number 7th. No problem. Let us start with third problem. Exercise 1.3, question number 3, third one. The question is x plus. Now students, we have a habit of writing y equal to, isn't it? But हमको ध्यान देना है कि implicit function में already equal to होता ही है ना, देख रहे हो, x plus root x y प्लस वाई इक्वल टू 1. अब आपने अगर लेट वाई इक्वल टू लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा. सो हमको इसमें वाई इक्वल टू नहीं लिखना होता है, वो तो एक्सप्लिसिट के लिए करना होता है. ठीक है, तो ऑलरेडी कल हमने मेथड देखा था कि हमको डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करना होता है, फिर जहां भी डी वाई बाई डी एक्स आएगा उसको कॉमन ले लेना होता है. ठीक है, सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस प्रॉब्लम. सो आई विल से differentiating with respect to x. So the derivative of x will be 1, first step. Now here it is root of something. So first we will apply root of x का derivative, isn't it? तो रूट x होता है 1/2 रूट x, तो रूट समथिंग हो जाएगा 1/2 रूट समथिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग. डेरिवेटिव ऑफ समथिंग मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई. मैं डायरेक्ट करूंगा तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई क्या होगा, तो एक्स यू ही लगेगा उसके अंदर, एक्स कॉमन वाई का डेरिवेटिव और फिर वाई कॉमन एक्स का डेरिवेटिव, दैट इज 1 प्लस वाई, दैट इज वाई का डेरिवेटिव, दैट विल बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0. नाउ यू कैन सी दिस इज द ब्रैकेट और इसके बाहर ये मल्टीप्लीकेशन है, तो इस टर्म को अंदर लेके मल्टीप्लाई करना होगा. So what will I get here? 1 plus as it is. This gets multiplied inside the first term. So it will become x upon 2 root xy dy by dx plus y1 is y upon 2 root xy plus dy by dx equal to 0. I hope everyone have understood this first two steps. Okay. Now students,
We all know that whenever we have x upon root x, like this term, then what we used to write? X upon root x. So x means root x into root x, right? x के अंदर दो रूट x है, that we know. तो एक रूट x नीचे से कैंसिल हो जाएगा तो ओनली रूट x बचेगा. सो हियर ऑल्सो वी कैन सी दैट इट इज रूट x रूट y ना. तो इसका मतलब दोनों में रूट है, रूट x भी है और रूट y भी है. तो इस वे से अगर हम करेंगे तो x अपॉन जो रूट x है वो सिंपली रूट x हो जाएगा. समझ रहे हो क्या? ये वाला जो टर्म है x और रूट तो दोनों में है, तो रूट x इसको सॉल्व किया, y और रूट y को सॉल्व किया, तो देखो क्या होगा इन द नेक्स्ट स्टेप. 1 प्लस, देखो मैं लिखने जा रहा हूँ रूट x बाई रूट वाई, थोड़ा इजी हो जाता है ना. 2 एज इट इज जैसा है वैसा, dy बाई डी एक्स प्लस रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स प्लस dy by dx equal to 0. I hope everyone understood this. Okay. Now you can see here that there are two terms containing dy by dx, this and this. So I will take dy by dx common from them, और बाकी जो नॉन dy by dx टर्म्स है उसको मैं राइट हैंड साइड में सेंड कर देता हूँ. तो ये क्या हो जाएगा, dy by dx अगर इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा रूट एक्स अपॉन 2 रूट वाई, यहाँ पर ये टर्म बचेगा. यहाँ से dy by dx कॉमन लिया तो वहाँ पर 1 बचेगा. This into dy by dx taken common equal to, transfer all these terms this side, right? So this will come that side, so it becomes minus root y upon 2 root x, and this becomes minus 1. Here also I will cross multiply, here also I will cross multiply. So I will get root x plus 2 root y upon 2 root y dy by dx equal to, here also I'll cross multiply, so it's minus root y minus 2 root x upon 2 root x. Now this entire term is multiplying here, it will go and divide. तो डिवाइड करेगा तो ये उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में हो न्यूमरेटर में हो जाएगा, और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा. तो dy by dx क्या होगा, ये तो एज इट इज रखेंगे पहले जैसा है वैसा, into this 2 root y will go up and root x plus 2 root y will be as it is. अब तो क्या है, almost we have reached to the final answer. We have to just do little bit adjustments to get the answer. So as you can see here, I can just take minus common from this term, right? 2 तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, 2 and 2. टुक माइनस कॉमन, और ये बाहर रूट वाई ऑलरेडी है तो माइनस रूट वाई लिख दिया, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर आएगा रूट वाई प्लस 2 रूट एक्स होल अपॉन, नीचे तो अब सिंपल रूट एक्स बचेगा एंड ब्रैकेट में बचेगा रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. सो ऐसे कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट स्टेप्स तो नहीं थे, आ जाना चाहिए था आपको, इस क्वेश्चन में डाउट नहीं रहना चाहिए था. चलो कोई बात नहीं, आपने पूछा तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है. आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस. नाउ द नेक्स्ट डाउट फ्रॉम सेम क्वेश्चन नंबर 3 is the seventh one, e raised to x plus y cos of x minus y.
e raised to x plus y equal to cos of x minus y. Okay. So here, tell me how will you do it? So it looks very simple. E raised to का डेरिवेटिव है और cos का डेरिवेटिव है. So we differentiate directly, right? So differentiating with respect to x. E raised to something का डेरिवेटिव e raised to something into derivative of something. डेरिवेटिव ऑफ समथिंग मतलब किसका डेरिवेटिव? x प्लस वाई का डेरिवेटिव. अब x प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? तो x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स हो गया लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव. सिमिलरली cos x माइनस वाई, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो cos समथिंग का डेरिवेटिव माइनस साइन समथिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग. समथिंग मतलब x माइनस वाई, तो x माइनस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? तो x का डेरिवेटिव 1 होगा माइनस y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होगा. यस, ये स्टेप सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट इन दिस फर्स्ट स्टेप? दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप. ये आएगा तो आगे का अपने को समझ में आएगा. अब इसके बाद क्या करना है? Gaurav, have you not understood or what? What have you not understood? Okay, you mean no doubt. Fine. So this is the first step. Now after this, we will solve this. So into है तो we will multiply inside. So take this e raised to x plus y inside. So it becomes e raised to x plus y into 1 e raised to x plus y plus it will multiply to the second term e raised to x plus y dy by dx इक्वल टू, ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो पहले टर्म में आएगा माइनस साइन ऑफ x माइनस वाई, माइनस और माइनस प्लस साइन ऑफ x minus y dy by dx. So now we can see two dy by dx terms, एक यहाँ पर दिख रहा है और एक यहाँ पर दिख रहा है. तो जो राइट साइड वाला dy by dx उसको लेफ्ट में लेके आ जाते हैं, राइट? फिर dy by dx कॉमन लेके उसको सॉल्व करेंगे हम लोग. तो देखते हैं. So keeping this वाला term as it is here, e raised to x plus y dy by dx, ये टर्म यहाँ पर आया तो माइनस साइन ऑफ x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अभी क्या करेंगे? ये टर्म तो यहीं पर है, e रेज टू एक्स प्लस वाई को भी इधर लाना होगा ना, तो माइनस साइन ऑफ x माइनस वाई तो पहले से यहाँ पर है, e रेज टू एक्स प्लस वाई यहाँ पर आएगा तो माइनस e रेज टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा. एंड नाउ इट्स वेरी सिंपल, जस्ट टेक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, फिर वो जो टर्म आएगा उसको उस साइड भेज देंगे एंड फिर थोड़ा एडजस्टमेंट करके उसको आंसर लिख देंगे. तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद ई रेज टू एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये एज इट इज रहेगा, माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस वाई माइनस ई रेज टू एक्स प्लस वाई. अब ये पूरा टर्म यहाँ पर नीचे जाके उसको डिवाइड कर देगा, राइट? सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस ई रेज टू एक्स प्लस वाई होल अपॉन ई रेज टू एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई. देखा जाए तो राइट साइड में टर्म्स एक ही जैसे लग रहे हैं, तो थोड़ा सा केवल हम कॉमन लेके माइनस कॉमन लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं.
जैसे देखो ऊपर अगर आपने माइनस कॉमन लिया तो दोनों टर्म प्लस हो जाएंगे, यस सर नो। तो साइन नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा और ई रेस टू एक्स प्लस वाई भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस ई रेस टू एक्स प्लस वाई। डिनोमिनेटर में भी माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो ये वाला टर्म पहले हो जाएगा और ये टर्म बाद में हो जाएगा ना, मालूम है ना। ए माइनस बी में से माइनस कॉमन लोगे तो बी माइनस ए हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों कर रहा हूँ? सो दैट वो सेम फॉर्मेट के जैसा दिख जाए, दैट्स ऑल। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। ऊपर और नीचे दोनों जो माइनस कॉमन लिया वो एक दूसरे से कैंसल आउट हो गया, तो यही आपका फाइनल आंसर है। यस, अंडरस्टूड एवरीवन? कैसे किया हम लोगों ने? डेफिनेटली यू नो those students can only ask doubt who have solved these questions, okay. So I hope this is clear now. uh, any other doubt? Okay, 10th question, one more doubt. So let us do 10th now. X plus sine of x plus y वाला question ना. Okay, no problem, let us do that one. Let me write down the question. X plus sine of x plus y equals to y minus cos of x minus y. All questions are of this same type student, ठीक है, वैसा ही करना होता है। Am I very much clear and loud? आवाज मेरी एकदम प्रॉपर आ रही है ना आप लोगों को? Okay. So again here also we will go with direct differentiation. So differentiating with respect to x. So here is a single term x का डेरिवेटिव 1 प्लस ये साइन समथिंग है, साइन समथिंग, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ समथिंग, तो कॉस एक्स प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई। डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा? तो एक्स का डेरिवेटिव 1 एंड वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है सबको? इक्वल टू राइट साइड में देखिए, तो यहाँ पर y है तो पहले तो y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स माइनस एज इट इज। अब cos का डेरिवेटिव, तो हम सबको मालूम है cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, तो cos समथिंग का डेरिवेटिव माइनस समथिंग होगा, बट ऑलरेडी माइनस है तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ प्लस। आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये होगा प्लस साइन ऑफ x माइनस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x माइनस वाई, तो x का डेरिवेटिव 1 एंड y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। यस, एनी डाउट इन द फर्स्ट स्टेप बच्चों? सबको समझ में आ गया फर्स्ट स्टेप? अब बस इसको एक्सपांड करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक साथ लेना है। हाँ, तो लेट्स सी। सो 1 प्लस एज इट इज cos multiplying inside, so cos of x plus y into 1, cos of x plus y, then cos of x plus y into dy by dx. Here we have a dy by dx term, then we will multiply inside, so it will be sine of x minus y into 1 is same, and minus sine of x minus y into dy by dx. So you can see in this question we have 3 terms containing dy by dx. एक लेफ्ट में है और 2 टर्म राइट में है, तो बस हम ये दोनों राइट में जो टर्म है dy by dx उसको लेफ्ट में ले लेंगे
और बाकी जो नॉन डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स हैं उसको राइट हैंड साइड में ले लेंगे. सो देखो क्या होगा यहाँ पर. Therefore, so already we have cos of x plus y dy by dx. From here ये माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस वाई आएगा तो हो जाएगा प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई. ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स और एक सिंगल वाला डी वाई बाई डी एक्स जो हो जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू राइट में एक ही टर्म है जो नॉन डी वाई बाई डी एक्स टर्म था और यहाँ से 1 और ये कॉस उधर जाएगा तो कॉस गया तो कॉस माइनस हो जाएगा और 1 भी माइनस हो जाएगा. हैव यू अंडरस्टूड दिस ट्रांसफर ऑफ द टर्म्स लास्ट 2 स्टेप्स? Okay, now I can take dy by dx common from this entire bracket, so it will become cos of x plus y plus sin of x minus y minus 1 बचेगा. सब में से मैंने dy by dx कॉमन ले लिया. राइट साइड में जैसा है वैसा ही रहने दीजिए. ठीक है, अब ये पूरा टर्म वहां पर जाके डिवाइड कर लेगा. सो देयरफॉर वी विल गेट dy by dx इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस वाई माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई माइनस 1 होल अपॉन cos of x plus y sin of x minus y minus 1. चाहिए तो नीचे वाले को जरा रीअरेंज कर लेंगे कि ऊपर वाले जैसा हो जाए. ऊपर नेगेटिव में है तो उसको रीअरेंज नहीं करेंगे, उसको ऐसा ही रहने देते हैं. नीचे cos प्लस साइन है तो उसको साइन प्लस cos लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो साइन x माइनस वाई plus cos x plus y minus 1. This is my dy by dx. Yes, everyone understood? समझ में आ गया सबको ये? ओके, मैं ये डाउट के क्वेश्चंस को लिखने का टाइम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि जिसको डाउट है उसका कहीं ना कहीं पर्टिकुलर स्टेप में डाउट होगा तो उन लोग मेरे साथ सॉल्व ही करते होंगे तो इसके लिए आई एम नॉट गिविंग यू टाइम टू राइट डाउन दिस. ओके, सो या दैट्स ऑल in question number 3. So you had 3 questions doubt in this question, so we have done all of them. So now we will start with 4th question. As you can see the 4th question here, it is like show that dy by dx is equal to y by x in the following, where a and p are constants. So in these questions, wherever a and p are there, they are considered as a constant term. Okay, and in every question we have to prove that dy by dx is y by x. मतलब सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर ऐसा आना चाहिए. ठीक है, तो कोई नहीं, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है, देख लो आप, इम्प्लिसिटी है. बस ये है कि आपको सॉल्व करके फाइनल आंसर इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? अदरवाइज ये सारे क्वेश्चंस इम्प्लिसिट है, सेम टाइप के ही क्वेश्चंस है. ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. आई विल स्टार्ट 1 minute later. You all start with this first question. Okay, so it's question number 4 here. First one.
Please solve this question. Yes, so have you all solved this? So it's very simple. We will simply differentiate this with respect to x. तो u भी हम अप्लाई करेंगे इसके अंदर, x रेस टू 7 कॉमन, y रेस टू 5 का डेरिवेटिव, तो पहले y रेस टू n लगेगा, तो 5 इंटू वाई रेस टू 4, बट फिर इंटू डेरिवेटिव ऑफ y भी होगा क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ठीक है। ये हुआ u डेरिवेटिव ऑफ v, u कॉमन लिया, डेरिवेटिव ऑफ v कर लिया, प्लस y रेस टू 5 कॉमन into derivative of x raised to 7, that will be 7x raised to 6. ये हुआ हमारा लेफ्ट साइड का। राइट हैंड साइड में भी डेरिवेटिव करेंगे तो पहले x रेज टू n लगेगा, सो 12x प्लस वाई रेज टू 11 इंटू एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 एंड y का डेरिवेटिव dy by dx. Match with your first step whether you are getting the same answer or not. Now we have to just simplify them. So you can see the first three terms एक multiply हो रहे हैं ये लोग. So it is 5x raised to 7 y raised to 4 dy by dx plus 7x raised to 6 y raised to 5 equal to, this term can be multiplied inside क्योंकि जब तक वो multiply नहीं होगा हम dy by dx को एक साथ नहीं ले पाएंगे, तो 12x plus y raised to 11 into 1 is same, and this is 12x plus y raised to 11 dy by dx, ठीक है। अब इस वाले dy by dx को हमको यहाँ लेकर आना पड़ेगा और इस टर्म को उधर लेके जाना होगा, so 5x raised to 7 y raised to 4 dy by dx minus 12 times x plus y raised to 11 dy by dx इक्वल टू, राइट में ऑलरेडी 12 टाइम x प्लस वाई रेज टू 11 है, इस प्लस 7 को इधर लेकर आएंगे तो -7 x रेज टू 6 y रेज टू 5. नाउ टेकिंग dy by dx कॉमन फ्रॉम दिस स्टेप, okay, so then what will it become बच्चों, it will be 5x raised to 7 y raised to 4 minus 12 x plus y raised to 11 dy by dx equal to this term as it is.
देन व्हाट वी विल डू, ये पूरा जो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, there is a question, sir, we are differentiating with respect to x, so how can we write derivative of y raised to 5 as 5y raised to 4? I have not just written 5y raised to 4, I have also multiplied by dy by dx. Why can't we write like this? अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तो फिर आई एम शॉक्ड कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 कैसे किया, उसके पहले लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे किया। हाँ गौरव, आप क्या करते थे लॉग वाई का डेरिवेटिव? आप, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि 1/y क्यों लिखते थे आप, टेल मी। वहां भी तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करते थे आप, तो फिर क्यों लॉग वाई का डेरिवेटिव 1/y लिखते थे? यस, बिकॉज इट इज लॉग ऑफ समथिंग ना, y भी तो वेरिएबल ही है, y इज इन टर्म्स ऑफ x, तो वो लॉग ऑफ समथिंग हो जाता था। तो हम पहले लिखते थे लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव, दैट इज 1/y, और फिर dy बाई dx, ऐसे लिखते थे कि नहीं? तो यहाँ भी तो वही है ना, समथिंग रेज टू 5, आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस इज x रेज टू 5, क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो उसके लिए तो ये समथिंग हो गया। तो y रेज टू 5 का डेरिवेटिव, पहले समथिंग रेज टू 5 अप्लाई किया और फिर y का डेरिवेटिव किया। अंडरस्टूड? Okay. Now take all these terms that side. So yeah, सबको यहाँ तक सबने कर लिया? चलो देख लो सब लोग यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम? डिफरेंशिएट किया, सॉल्व किया और dy बाई dx आ गया। अब ये क्वेश्चन अगर सिंपल होता है कि dy बाई dx फाइंड कर रहे हैं तो यहीं पर हम स्टॉप कर देते, राइट? बट क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना है ना। इन सारे क्वेश्चंस में क्या बोला है, हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? दैट dy बाई dx इज y बाई x। अब क्या लगता है इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि y बाई x आएगा? थिंक एंड टेल मी, हाउ कैन वी सॉल्व दिस टू गेट y बाई x? Divide, okay, then divide. Tell me how to divide these two terms. Come on, let me know कैसे डिवाइड करें। बीच में माइनस साइन है तो हम ऐसे कुछ कैंसिल भी नहीं कर सकते, राइट? तो फिर तो अभी यहाँ तक आने के बाद हम फाइनल आंसर नहीं पहुँच पा रहे y बाई एक्स, तो इसका एक ही मेथड है, आपको x प्लस 11 सॉरी x प्लस वाई रेज टू 11 को एक्सपांड करना पड़ेगा दोनों जगह, फिर उसमें 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर सब इस टर्म के साथ कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, सॉल्व होगा, फिर कुछ कॉमन होगा, फिर कॉमन लेने के बाद कुछ कैंसिल हो जाएंगे, उसको सॉल्व करते 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 हमको y बाई एक्स मिलेगा। बट इवन एक्सपांडिंग दिस इज अ वेरी टीडियस जॉब। कौन सा थियरम अप्लाई करेंगे? बाइनोमियल थियरम, यू रिमेंबर ना, x प्लस वाई रेज टू 11,
उसमें 12 टर्म्स आएंगे बाय एक्सपांशन में, फिर उस 12 टर्म्स में 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो इट विल बी ह्यूज, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट. तो फिर सर अब कैसे करेंगे, एग्जाम में आएगा तो. सो व्हाई आई डिड like this, because when this question will come, you will also follow the same way and you will reach here and you will start. Okay, sir, can we multiply denominator on both sides? Nothing will happen. It will become more complex ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा. It will be more complex here. So we are not able to convert this into dy by dx. Right hand side is y by x. So then ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, ये रेस टू 11 ये सब की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है. तो स्टूडेंट्स, मैंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि जब हम मिस्टेक करते हैं और फिर हम उसको इम्प्रूव करते हैं तो वो चीज़ हमको याद रह जाती है. शायद मैंने पहले ही बता दिया रहता कि हमको इस मेथड से करना है तो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे वो क्लिक नहीं होता. आप समझ गए आपको कि इससे तो प्रॉब्लम होने वाला है. तो हम क्या करेंगे, तो बच्चों देखो ना, बहुत, मैंने क्या बोला था, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पावर हो, मल्टीप्लाई हो, तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स ना, दैट बिकम्स इजी. ये यूवी किया इतना बड़ा, ये एक्स रेस टू एन अप्लाई करना पड़ा, वो 12 नीचे आ जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन का प्लस हो जाएगा. दैट बिकम्स वेरी सिंपल डे, isn't it student? So let us do the same question by alternative method now. पहले वाले को तो हमको बहुत सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा, बट लेट्स सी हियर कैसे करेंगे. x रेस टू 7 y रेस टू 5, किसी ने किया था क्या लॉग वाला? नो. ओके, यस डेफिनेटली, आई एम नॉट सेइंग द फर्स्ट इज रॉन्ग, बट देन उसको सॉल्व करके y बाई एक्स लाना विल बी वेरी डिफिकल्ट ना. रेस टू 11 कौन एक्सपांड करेगा? हाँ, तो आपने अगर वो मेथड किया तो आपको वो स्टेप आने के बाद रियलाइज हो जाएगा, फिर आपको कट करके वापस करना पड़ेगा. ठीक है, सो चलो नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. सो देखो ना, लॉग लेने के बाद कितना सिंपल हो जाता है. इट सिंपली बिकम 7 log x प्लस हो जाएगा, दिस इज 5 log y इक्वल टू 12 of log of x plus y. And now if I differentiate, there is no problem at all, I can easily differentiate it. Sorry, yes. So let's see, differentiating with respect to x. तो ये क्या हो जाएगा, 7 कांस्टेंट बाहर, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस 5 कांस्टेंट बाहर, log y का डेरिवेटिव 1 बाई वाई और फिर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल टू 12 कांस्टेंट बाहर, log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन समथिंग इनटू x प्लस वाई का डेरिवेटिव. तो x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स. आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट 2 स्टेप समझ में आ गया. ओके फाइन, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. तो जो फर्स्ट टर्म है वो 7 बाई एक्स एज इट इज आ गया, यहाँ पर आ गया 5 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 12 अपॉन एक्स प्लस वाई है, वो अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा. तो 12 बाई एक्स प्लस वाई इंटू 1 इज 12 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 12 by x plus y into dy by dx. And now it is as same as the previous problems. हम जैसे करते थे उसी वैसे करेंगे हम इसको.
डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को हम साथ में ले लेंगे, मतलब उसको एक साइड ट्रांसफर करेंगे पहले। सो अब ये क्या हो जाएगा, 5/y डी वाई बाई डी एक्स ऑलरेडी है, वहाँ से आया 12/x प्लस वाई नेगेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। हियर 12/x प्लस वाई ऑलरेडी है, वहाँ से 7/x आ जाएगा। टेकिंग dy by dx common, so I will be left with 5/y minus 12/x plus y into dy by dx. Here I will get the same term as it is. Now here also and here also I can cross multiply together. So let us see how we will do. So cross multiplying. So 5 directly multiply कर रहा हूँ, 5x plus 5y minus 12y whole upon y into x plus y dy by dx. Here also 12x माइनस 7 का मल्टीप्लाई होगा तो -7x -7y, ठीक है, होल अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस 5 माइनस 12 हो जाएगा -7y अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 12 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 7y अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई। अब या तो डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हैं, या तो उधर जाके हमको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा इस वाले टर्म का और फिर कैंसिल कर सकते हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं, डायरेक्टली दोनों साइड सेम टर्म है तो हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो हियर नाउ आई एम लेफ्ट विथ 1/y dy by dx equal to 1/x. Y is dividing there here, so it will come here, go there, and it will multiply, so it becomes y by x, and hence the proof. This is what we wanted to prove, students, isn't it? So hence proved. Yes, so please kindly take a note of this fast, everyone. Start solving this from the beginning. Let me know if this is done, students.
Okay, I hope everyone have done that. So let's go ahead with the next question, question number 2. So students, as you can see, this question number 2 is exactly of the same type of question number 1, isn't it student? बस 7 5 की जगह यहाँ पर कोई दूसरे नंबर है, p है और 4 है. So we will do it the same way. Take log and then solve. ठीक है? Okay. Now, from question number 3 to question number here is उतना ही है, चलो 8 क्वेश्चन तक. इन सब में ना एक चीज जो है ना वो बहुत कॉमन है, तो मैं यहाँ पर ही पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट, ध्यान से देखो. सपोज ये थर्ड क्वेश्चन है. अगर इस थर्ड क्वेश्चन में मैं देखता हूँ कि थर्ड के राइट में कांस्टेंट है, ठीक है, राइट साइड में कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, राइट. तो looking at that point, I may differentiate this with respect to x. That is absolutely fine. सोचो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो राइट साइड तो 0 हो जाएगा. लेफ्ट में क्या होगा? लेफ्ट में पहले किसका फॉर्मूला लगेगा? यस, सेक एक्स का. वो क्या होता है? सेक एक्स टैन एक्स. यानी जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो कैसा आएगा? सेक ऑफ दिस इंटू टैन ऑफ दिस इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, which is again u by v rule, isn't it student? So don't you think that sec of something then tan of something फिर u by v, कितने बड़े बड़े टर्म्स को हमको कैरी करना है. तो उस वो भी मेथड करेक्ट है, ठीक है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा आपका, ठीक है, आंसर लाने में डिफिकल्टीज हो सकती है. अगर मैं एक स्टेप डिफरेंशिएशन के पहले कर दूं तो शायद मैं उसको अवॉइड कर सकता हूं. तो वो क्या है? अगर मैंने इस सेक को इस साइड भेज दिया तो सेक इस साइड जाके क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स हो जाएगा. यस, जैसे हम साइन थीटा इक्वल टू ए होता था तो थीटा क्या लिखते थे? साइन इनवर्स लिखते थे. अब इससे क्या बेनिफिट होगा? सेक उधर गया, भले वो सेक इनवर्स हो गया, लेकिन वो है तो सेक इनवर्स ए स्क्वायर का ना, और ए स्क्वायर कांस्टेंट है. अगर ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो सेक इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर इज आल्सो कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव विल बी स्टिल 0. समझे क्या? बट लेफ्ट में वो निकल गया, तो अब लेफ्ट में केवल u बाई वी करना रह गया, बाकी तो सब इजी हो गया. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? प्लीज लेट मी नो. सेक ए माइनस सेक बी कैन बी अप्लाइड, ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है जयश्री. देयर इज नो सच फॉर्मूला सेक ए माइनस सेक बी. एम अपॉन एन, हाँ वो सेपरेट कर सकते हो, लेकिन फिर अच्छा, यू वांट टू से सेक ए अपॉन बी इज सेक एम माइनस सेक एन. अरे वो लॉग में होता है, लॉग एम अपॉन एन लॉग एम माइनस लॉग एन होता है. सेक एम अपॉन एम सेक एम माइनस सेक एन नहीं होता. दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लॉग. दिस इज सेक. एंड इवन इफ सपोज करना पड़े और ऐसा करे तो भी वो कॉम्प्लेक्स नहीं होने वाला ना, क्योंकि सेक विल रिमेन अगेन सेक एक्स इंटू टैन एक्स, वो तो आने वाला ही है. Yes, is that clear everyone how I did this problem? Now same way even tan inverse, if you find the derivative, if you find the derivative directly तो पहले तो tan inverse something का derivative, that is 1 upon 1 plus x square होता है तो something का square, फिर अंदर का डेरिवेटिव. उससे अच्छा tan इनवर्स को इधर भेज दो. tan इनवर्स यहां पर जाएगा तो क्या होगा बच्चों? tan हो जाएगा, तो tan ऑफ ए स्क्वायर स्टिल इट इज कांस्टेंट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसका डेरिवेटिव 0 ही होगा. और लेफ्ट में u बाई वी लगाएंगे. हाँ, सेम वे फिफ्थ भी वैसा ही है. कॉस इनवर्स है, वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस. अब यहाँ तो ऑलरेडी tan इनवर्स है, तो कैसे लिखेंगे?
जब वो इधर जाएगा तो हम लिखेंगे कॉस ब्रैकेट में tan इनवर्स ए, इसको देख के डरो मत, ए कांस्टेंट, तो tan इनवर्स ए कांस्टेंट, तो cos ऑफ tan इनवर्स ए भी कांस्टेंट होगा, तो उसका डेरिवेटिव जीरो होने वाला है। फिर जो भी है लेफ्ट में जो ये u बाई वी है उसमें u बाई वी अप्लाई करना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? सेम वे इन लॉग ऑल्सो, राइट में कांस्टेंट है तो लॉग को उधर भेज दो, लॉग उधर भेजते कैसे सर भेजेंगे लॉग को, तो हम लोग 11th स्टैंडर्ड में लर्न किया था लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन, सॉरी लोगैरिथमिक फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो लॉग है, बेस नहीं दिया, इसका मतलब बेस ई है, तो लॉग जब उधर जाता है तो एक्चुअली वो बेस जाता है, तो दैट बिकम्स ई रेस टू 20 और लॉग निकल जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ, तो वो ई रेस टू 20 होगा, उसका डेरिवेटिव भी जीरो ही होने वाला है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, सेवेंथ में क्या करेंगे, इसमें इसका उल्टा है इसमें लॉग ले लेंगे, तो देखो ई रेस टू 20 कहाँ से गया, इधर का ई इधर लिया, ठीक है, तो या तो आप टेकिंग लॉग करो या तो डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल को लोगरिथमिक में कन्वर्ट करो, ई उधर जाएगा तो लॉग ए लग जाएगा, और ये बस न्यूमरेटर जो पावर है वही रह जाएगा, और लॉग ए का डेरिवेटिव तो जीरो होने वाला है कांस्टेंट, तो जो भी है लेफ्ट में u बाई वी अप्लाई कर रहा है, सो एवरीवेयर इट इज u बाई वी रूल। हाँ, और एट भी वैसा ही है, साइन उधर गया, साइन इनवर्स ए क्यूब हो जाएगा, फिर जो बचा उसमें u बाई वी रूल। यस, आई होप एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन, कैसे करना है सबको समझ में आ रहा है? तो u बाई वी रूल लेफ्ट में लगेगा और बाकी सब तो बहुत ही सिंपल हो जाएंगे। तो फ्रॉम 3 to 8 ऑल क्वेश्चंस आर ऑफ द सेम टाइप, सो मैं इसमें से कोई भी दो प्रॉब्लम करता हूँ, ठीक है, बाकी के सारे प्रॉब्लम्स विल बी होमवर्क। तो लेट मी डू फिफ्थ वन, ओके, जो कॉस इनवर्स वाला है ना वो वाला करता हूँ। चलो ऑल ऑफ यू स्टार्ट, राइट ऑन फिफ्थ क्वेश्चन। u बाई वी रूल यूज होने वाला है, तो उसका डेरिवेटिव का रूल देख लो कैसा होता है। Fifth one now, so it is tan inverse 3x square minus 4y square upon 3x square plus 4y square. Solve along with me. I will not give you time to write down because it's very simple. ठीक है, okay. Now what we will do, तो tan इनवर्स को उधर भेजेंगे सबसे पहले, तो this becomes 3x square minus, अच्छा this is fourth one, let me just check, अच्छा फोर्थ लिख दिया मैंने, चलो कोई नहीं, फिर फोर्थ ही करते हैं, अभी कौन सेकेंड फिफ्थ लिखेगा, फोर्थ ही करते हैं। सो 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू tan ऑफ a स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप, आपको लगता रहेगा सर u बाई वी तो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, डोंट वरी, देखो u बाई वी रूल क्या होता है, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ एक बार, डेरिवेटिव ऑफ u बाई वी रूल, always take denominator common first, then derivative of numerator minus numerator common,
डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन बी स्क्वायर। अब ये होल अपॉन बी स्क्वायर का तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राइट साइड में जो डेरिवेटिव है इसका ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ का जो वी स्क्वायर है वो जब राइट में जाएगा तो मल्टीप्लाई होके वो भी ज़ीरो ही हो जाएगा ना बच्चों, तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, वो ईजी हो जाएगा। ठीक है, so let us differentiate this now. So differentiating with respect to x। अच्छा, बहुत जगह सॉल्यूशंस में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, फिर कांस्टेंट में कन्वर्ट किया है, बहुत सारे अलग मेथड्स हो सकते हैं, बट यू बाई वी रूल इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि यू वांट टू अवॉइड इट, सो लेट्स गो फॉर इट। सो सबसे पहले डिनोमिनेटर कॉमन, तो 3x² प्लस 4y² कॉमन। अभी न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, हाँ अब पहला क्वेश्चन है इसके लिए मैं ये डेरिवेटिव करके ऐसा लिखता हूँ, नहीं तो आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव करने का प्रैक्टिस करना है। माइनस न्यूमरेटर कॉमन, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन v square, so that is 3x² plus 4y² the whole square, equal to right side being a constant, the derivative will be 0. Is that clear everyone? अब इस डिनोमिनेटर को उस साइड लेकर गया, वो 0 हो गया। अब न्यूमरेटर ही जो बचा है उसको सॉल्व करना है अपने को, तो देखो कैसे होगा। 3x² प्लस 4y² एज इट इज, इसका डेरिवेटिव कर लो तो क्या होगा, 3 कांस्टेंट बाहर, x² का डेरिवेटिव 2x माइनस 4 इंटू y² का डेरिवेटिव 2y, बट y है विथ रिस्पेक्ट टू x, हमको उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो dy/dx। देन सेकेंड टर्म 3x² माइनस 4y² एज इट इज, इसका डेरिवेटिव तो 3 इंटू 2x प्लस 4y² का डेरिवेटिव 2y dy/dx इक्वल टू 0। राइट साइड पूरा डिनोमिनेटर उस साइड गया तो राइट साइड 0 हो गया। इज इट क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड दिस? बस अब हम इसको ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो देखते हैं कैसे होगा। तो पहले 3x² का अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ब्रैकेट में, फिर 4y² का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो it will be like 3x² into this, so already 3 2s are 6, 6 3s are 18, so 18x raised to 3, then 3x² इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 4 2s are 8, 3s are 24, तो 24 चाहिए। तो पहले इसको सॉल्व कर लो ब्रैकेट को, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन ज़रा डिफिकल्ट लग रहा है तो ऐसे पहले वो ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। चलो, तो 3x² प्लस 4y², ये है 6x माइनस 8y dy/dx, 3x² माइनस 4y², 6x प्लस 8y dy/dx इक्वल टू 0। राइट, सॉरी ब्रैकेट मैंने जरा गलत बना दिया, 8y के साथ dy/dx है ना बच्चों, 8y dy/dx like this। Okay, so now we will multiply inside and we'll solve this।
तो देखो ध्यान से, 3x² अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले। सो 3 6 18x³ माइनस 3 8 24x² dy by dx। 4y² का मल्टीप्लाई 4 6 24 xy² माइनस 4 8 32 y³ dy by dx हो गया। लेफ्ट का एक्सपांशन, मतलब लेफ्ट के फर्स्ट टर्म का एक्सपांशन। दिस इज फर्स्ट ब्रैकेट माइनस है, इसके लिए वी नीड टू पुट ब्रैकेट प्रॉपरली। ना 3x² का मल्टीप्लाई, सो 3 6 18x³ माइनस 3 8 24x² dy by dx। देन माइनस 4y² का मल्टीप्लाई, तो माइनस 4 6 24x³, ठीक है। एंड देन माइनस 4 8 32y³ dy by dx। यस एवरीवन क्लियर विद दिस? चेक कर लो मेरा कैलकुलेशन कहीं अगर मैंने कुछ मिस्टेक कर दी हो। अभी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सेकेंड वाला ब्रैकेट का सबका साइन चेंज हो जाएगा। सो लेट्स डू दैट। कीप दिस एवरीथिंग एज इट इज। ट्वेंटी फोर XY² कहाँ पर? 3x³ x²y। हाउ कम 24xy²? हाँ 4 6 24, राइट। क्यूब कैसे लिख दिया मैंने? 4y² इंटू 6 इज 24xy², correct. Opening this bracket, so it becomes minus 18 plus 24x²y plus 24xy² plus 32y³. Yes, now you can easily make out some of the terms are getting cancelled here. 18x³ plus and negative gets cancelled, right? Then anything else getting cancelled here? Minus 32y³ plus 32y³ also gets cancelled. साइन मिस्टेक हो गया लग रहा है ब्रैकेट क्या, क्योंकि पूरा dy by dx ही कैंसिल हो रहा है। लेट मी जस्ट चेक। हाँ प्लस प्लस, हाँ ये दोनों प्लस में होना चाहिए ना, ये प्लस प्लस होना चाहिए। दिस इज प्लस, सो ये प्लस होगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? माइनस। तो प्लस प्लस एंड देन माइनस माइनस होना चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस प्लस, करेक्ट है। तो अभी क्या कैंसिल हो जाएगा? एक बार मुझे चेक कर लेने दो जरा वापस से। हाँ करेक्ट। सो नाउ 32 वाला कैंसिल हो रहा है। अभी बच क्या रहा है हमारे पास? देखो बच्चों, तो माइनस 24x² dy by dx माइनस 24x² dy by dx माइनस 48x² dy by dx, एक ये टर्म बच गया। और दूसरा बच रहा है जिसमें dy by dx नहीं है, एक 24xy² यहाँ पर और एक 24xy² यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 48xy² equal to 0. And I think now after solving this we can get the answer. तो
इस वाले नेगेटिव टर्म को ही पूरा dy बाई डी एक्स को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो 48xy² इज इक्वल टू 48x² dy बाई डी एक्स। फिर ये वाला टर्म इधर जाके डिवाइड करेगा, so it is 48xy² divided by 48x² dy by dx, and I think 48 cancel, x cancel, y cancel, तो एक ऊपर y बचेगा, नीचे x बचेगा. This is your dy by dx and hence the proof. Have you all understood this? सबको समझ में आया? हाँ, अब इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है, दैट आल्सो वी विल डू, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा ये हो गया, लंबा हो गया, तो एक अल्टरनेटिव मेथड्स भी मैं करके बताता हूँ. तो अल्टरनेटिव मेथड में ये वाला जो स्टेप है वो तो कॉमन ही रहेगा, फर्स्ट स्टेप, ठीक है. सो लेट मी जस्ट कॉपी हो जाएगा तो मुझे वापस से इसको टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट कॉपी नहीं हो रहा है, लेट इट बी, आई विल राइट इट अगेन. तो आई थिंक ये सबको, ये ऐसे भी ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, यू कैन मैनेज, क्योंकि अपने को मालूम है ना कि सॉल्व विल करके, देखो हमसे मिस्टेक हुआ तो हम क्यों फाइंड आउट कर पाए क्या मिस्टेक था, क्योंकि हमको मालूम है कि ये सॉल्व होके एकदम ईजी वे में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि आंसर y बाई एक्स है, राइट. तो इसका ऑल्टरनेट मेथड देख लेते हैं. ठीक है, तो tan इनवर्स 3x² माइनस 4y² अपॉन 3x² प्लस 4y² इक्वल टू a². तो फर्स्ट स्टेप तो एज आई सेड इट्स कॉमन, 3x² माइनस 4y² अपॉन 3x² प्लस 4y² इक्वल टू tan ऑफ a². ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, a² कांस्टेंट है, tan ऑफ a² भी कांस्टेंट है. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि क्या है, जो कांस्टेंट होते हैं उसको कुछ भी लिखो तो चलेगा ना, क्योंकि वो ऐसे भी कांस्टेंट ही है, राइट. तो मैंने क्या किया, आई अज्यूम, लेट्स से दिस कांस्टेंट इज k. समझ रहे हो क्या? जस्ट फॉर इजी सॉल्विंग पर्पज, क्योंकि अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूंगा, तो अगर tan a² रखता तो जरा कैन मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा सा दिखने में कैसा ऑड लगता है ना, तो इसके लिए हमने ऐसे भी कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैंने ऐसा लिख दिया. अब क्या करूंगा मैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको सॉल्व करूँ, ठीक है, और थोड़ा सा ऐसा जो कॉम्प्लेक्स u बाई वी था इसको जरा रिड्यूस करने का ट्राई करते हैं. तो इफ इट विल गो दैट इट विल बी 3kx² प्लस 4ky², इज इट? ओके, फिर क्या करते हैं हम लोग, इस x² को इधर लेके आते हैं, y² को उधर लेके जाते हैं, ठीक है. तो सो दैट x² के टर्म्स x² के साथ रहेंगे, तो -3k² kx² एंड 4y² इस साइड आ गया, 4ky². नाउ यू कैन सी x² आई कैन टेक कॉमन, सो इट विल बी 3 - 3k. आप बोलोगे 3 भी कॉमन लो, कोई नहीं, x² लो. क्यों ऐसा कर रहा हो आपको समझ में आएगा. उसके बाद y² कॉमन ले लो, तो आपको बचेगा 4 + 4k. तो स्टूडेंट्स, आपको नहीं लगता कि ये जो 3 - 3k है, इसमें अब कोई भी x का टर्म नहीं है, ये कांस्टेंट है. 4 + 4k, इसमें कोई भी टर्म नहीं है, ये कांस्टेंट है. तो क्या करो, कांस्टेंट को एक साइड ले लो, मतलब ये इधर मल्टीप्लाई करा, इधर जाके डिवाइड करेगा, ठीक है. या तो मतलब अप टू यू कि आपको कैसे करना है, इसको इधर भेजना है या इसको इधर भेजना है, ये आपके ऊपर है. तो हमने क्या किया, सपोज ये 4/4k को इधर भेजा, तो ये हो जाएगा 3 - 3k डिवाइड बाई 4 + 4k.
और इस एक्स स्क्वायर को इधर भेज दिया, तो ये हो गया वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। एंड नाउ जो हमने पहले स्टेप में इस स्टेप में डिफरेंशिएट किया था, तो राइट साइड जीरो हो गया था क्योंकि कांस्टेंट था। यहां भी अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डोंट यू थिंक दिस साइड विल बी जीरो, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट कांस्टेंट ओनली। के कांस्टेंट है तो उसके साथ 3 है, -3 है, वो सब कांस्टेंट ही है ना। बट इससे बेनिफिट क्या हुआ ये 4 स्टेप सॉल्व करने से, कि ये वाला जो है वो इजी हो गया। हाँ, ये इजी हो गया इसका डेरिवेटिव। हाँ, और आप बोलोगे सर आप एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर क्यों नहीं लिए, आप वैसा भी ले सकते हो, बट एक्चुअली आप वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर करोगे तो आपको फास्ट डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। वैसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नाउ इफ आई डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा सोचो। डिनोमिनेटर में, सॉरी लेफ्ट साइड में ये जीरो हो गया, यहाँ पर u बाई वी रूल, एक्स स्क्वायर कॉमन, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 है, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो कि आप लोग। एक्स स्क्वायर कॉमन, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर कॉमन, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। हेलो, अंडरस्टूड, अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब ये जो पूरा डिनोमिनेटर वो इस साइड गया, इस साइड गया तो वो भी ज़ीरो हो गया, तो बचा क्या यहाँ पर 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy स्क्वायर। इस -2xy स्क्वायर को इधर लेकर आया तो प्लस 2xy स्क्वायर इज 2x स्क्वायर वाई dy by dx. And now final step, this will come down and it will divide. So 2xy square divided by 2x square y is equal to dy by dx. 2 cancel, एक ऊपर से x cancel, नीचे का y cancel. So I think now you got the answer. Have you all understood? तो जहाँ भी ऐसा पॉसिबल होगा जहाँ पर हम सॉल्व करके रिड्यूस कर सकते हैं तो हम ऐसे कर लेंगे। तो दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों मेथड से आपको करना है। तो चलो काइंडली टेक अ नोट ऑफ दिस ऑल। सो आई वाज गोइंग टू सॉल्व 2 प्रॉब्लम्स, बट ऐसा लग रहा है अभी एक ही प्रॉब्लम करना पड़ेगा। yes yes you can apply the second method in all the sums. और वैसा ही करोगे तो अच्छा है, बट फर्स्ट मेथड सपोज आपको नहीं क्लिक हुआ है ना, यू डिड दैट, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन पीडियस हो रहा है, बट देन टू यू विल गेट द आंसर। अगर आपको सेकेंड मेथड ही कन्विंस हो, फर्स्ट मेथड लिखना ही नहीं है तो इट्स अप टू यू, आप लिख लो फिर सेकेंड मेथड ही, नो प्रॉब्लम। कैन यू एक्सप्लेन लास्ट फ्यू स्टेप्स? किसका? सेकेंड मेथड का लास्ट फ्यू स्टेप। सो आई डोंट नो, फ्यू मीन्स 1 और 2 स्टेप्स, राइट? तो देखो यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। डेरिवेटिव तो आ गया आपको, ये वाला स्टेप तो आ गया रहेगा, u बाई वी, वी कॉमन लिया, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, फिर वाई स्क्वायर कॉमन, तो ये आ गया। ये पूरा डिनोमिनेटर को मैंने इधर भेज दिया, ये डिवाइड कर रहा है, इधर गया मल्टीप्लाई, ज़ीरो हो गया, ऊपर का जो है वही बचा, 2x एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, 2xy स्क्वायर। अब इसके बाद ये डाउट क्या पूछ रहे हो, आई डोंट नो, इसमें डाउट ही नहीं होना चाहिए भाई। ये तो सिंपल अलजेब्रिक कैलकुलेशन किया है मैंने, ये नेगेटिव टर्म को इधर लेकर गया, पॉजिटिव हुआ, ये टर्म इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। अब इसमें क्या कैंसिल हुआ,
So this is easy. What happened to the denominator? In the previous sum also I had explained you. Denominator goes to the another side, multiply to 0. So it becomes 0. Okay. चलो कंप्लीट करो जल्दी से. And 5 minutes है तो let me do one more problem of log वाला. Yes. Let me know if it is done, students. Fine, I think it is done, students. So let me do one more problem and then we will stop for the day here. So I should go for log वाला करूँ या e to the power, कोई भी एक वैसा ही क्वेश्चन है दोनों. e में बस वो दूसरे साइड जाके log लग जाएगा. 6 करता हूँ मैं. So it is log of x raised to 20 minus y raised to 20 whole upon x raised to 20 plus y raised to 20 equal to 20. Okay. So the first step is taking log that side. So it becomes x raised to 20 minus y raised to 20 whole upon x raised to 20 plus y raised to 20 equal to e raised to 20. Okay. And now I may say that this is as k as a constant. So keeping left hand side as it is, I'm saying it is equal to k where k is constant. ठीक है. अभी हम जैसे लास्ट प्रॉब्लम किए थे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे. So it becomes x raised to 20 minus y raised to 20 equal to k x raised to 20 plus k y raised to 20. इस x raised to 20 को इस साइड लेके आ जाओ
तो x रेस टू 20 माइनस के एक्स रेस टू 20 माइनस वाई रेस टू 20 वहाँ गया तो y रेस टू 20 प्लस के वाई रेस टू 20 हो गया. Same way I can take x raised to 20 common, so 1 minus k will be left. Y raised to 20 common, so 1 plus k will be left. This time मैं x upon y करता हूँ तो ये हो जाएगा x raised to 20 डिवाइड बाई y raised to 20 इक्वल टू 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के. हमारा मेन टारगेट क्या है, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट आ जाए. ठीक है. एंड नाउ आई कैन डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x. सो लेफ्ट में u बाई वी रूल अप्लाई करना होगा. तो देखते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर कॉमन y रेज टू 20, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 20x रेज टू 19 माइनस x रेज टू 20 कॉमन, y रेज टू 20 का डेरिवेटिव 20y रेज टू 19 इंटू डी वाई बाई डी एक्स. इजंट इट बच्चों, समझ में आ रहा है? होल अपॉन v स्क्वायर, तो y रेज टू 20 का होल स्क्वायर equal to right side is entirely constant, so उसका derivative is 0. This right hand side is taken to the left, denominator taken to the right hand side, so it will multiply to zeros to give 0 only. तो ये हमारे पास फाइनली यहाँ पर बचेगा 20x raised to 19 y raised to 20. Here I will be left with 20x raised to 20 y raised to 19 dy by dx इक्वल टू 0. ये नेगेटिव वाला टर्म उस साइड लेकर गए तो 20x रेज टू 19 y रेज टू 20 इज 20x रेज टू 20 y रेज टू 19 डी वाई बाई डी एक्स. डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ दो, बाकी लोग को इधर लेके डिवाइड कर दो. तो डी वाई बाई डी एक्स अपने को मिलेगा 20x रेज टू 19 y रेज टू 20 होल अपॉन 20x रेज टू 20 y रेज टू 19. ठीक है. So now after solving this 20 cancel, x 19 x 20 नीचे x बचेगा, ऊपर एक y बचेगा. Have you all understood this now? Exactly in a similar manner we have done that. So please solve this now. Complete it. Let me know if it is done, students.
Okay, so this was a quite easy problem. So you have to now manage the rest of the questions. Okay, from the textbook. So here is a question number 4. So you have to solve the rest of the questions. क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसा ही है, सेम है, प्रूव दैट है, बट वहाँ पर कैसा था, हर एक क्वेश्चन को डी वाई बाई डी एक्स ही प्रूफ करना था. यहाँ पर सबका प्रूफ अलग है. देख, यू कैन सी क्वेश्चन इम्प्लिसिटी है, बट कभी ये प्रूफ करना है, कभी ऐसा प्रूफ करना है ना, तो ये भी आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, नो प्रॉब्लम. पहले आप फोर्थ कर लो, देन वी विल do the fifth one. Okay, students? So that's all for today. See you all in the next lecture. Thank you very much. Bye bye.